Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, we are back with another session for your UPSC CSAT comprehension practice for your English part. And guys, in this series we started from the very scratch. We started from the very basics of assumption, conclusion, and inference and corollary based questions, how to solve such passages, how to eliminate your options, and then we did a lot of practice passages, and then we have embarked upon the previous year questions now. So in this session we will be practicing a couple of passages from the previous year questions from the year 2011. So this is going to be a PYQ practice session for the year, for your previous year passages. So let's begin. But before we go any further, now guys, if you are a fresher, if you are a beginner, I have the best thing available for you. So this is a comprehensive guidebook that we have that we have prepared for our dear aspirants. So students who are preparing, who are beginning to start out for your CSAT preparation, now this course book provides you everything ranging from strategies to sources to basically everything, to syllabus, everything that you need. So syllabus, strategy, and sources, everything is given for all the subjects in this course book. And this comprehensive guidebook is completely free of cost. You can download this book. The link has been given in the description of the video. Go download this book and get benefited for your preparation and for your journey ahead. So having said that guys, let's start with the session now. So we'll be discussing some previous year passages from the year 2011. All right, so we have the first passage in front of us. What have I always told you? That always look for the question. What does the question ask? What is it basically looking for, or what is it asking you to look for? So the question says, what is the critical inference that can be made from the above passage? So we have to find a logical inference from the passage. So let's read the passage and let's solve it, right? So the passage is, India accounts for nearly a fifth of world's child deaths. So that's alarming actually. So India accounts for nearly one fifth of the world's child's death. In terms of numbers, it is the highest in the world. Nearly 16 lakhs every year. मतलब हर साल 16 लाख बच्चे मर जाते हैं, और इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी बताया गया है. ऑफ दीज मोर देन हाफ डाई इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ. 16 में से लगभग 8 लाख, आधे तो लगभग पहले महीने में ही गुजर जाते हैं. ऑफिशियल्स बिलीव दैट द रीजन फॉर दिस इज द एब्सेंस ऑफ स्टेप्स टू प्रोपोगेट. जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे ना, इसको नोट करते चला करो. ऑफिशियल्स बिलीव दैट द रीजन, उसका रीजन क्या है? एब्सेंस ऑफ स्टेप्स टू प्रोपोगेट बेसिक हेल्थ प्रैक्टिसेस. एब्सेंस ऑफ स्टेप्स to propagate basic health practices relating to breastfeeding एंड इम्यूनाइजेशन. के ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनाइजेशन के लिए जो बेसिक हेल्थ प्रैक्टिसेस है, उनकी जो समझ है, उनका ना होना सबसे बड़ी वजह है जो बच्चे पहले एक महीने में गुजर जाते हैं. ऑल्सो द लार्ज रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन of 2.6 crores 2.6 crore remains bereft of care during the critical phases of pregnancy and post delivery. So और उसके अलावा जो 2.5 करोड़, so also the large reproductive population, right, of 2.6 crore remain bereft of care during the critical phases of pregnancy and post delivery. और जो उनकी माँ होती है वो भी खतरे में होती है, क्रिटिकल फेजेस में होती है आफ्टर द डिलीवरी. एडेड टू दिस इज द प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस. ठीक है, तो जो बाल विवाह हो जाते हैं, ठीक है, अनीमिया, कमजोरी अमंग यंग वुमेन, एंड लैक ऑफ फोकस ऑन अडोलेसेंट सैनिटेशन, और बच्चों की अडोलेसेंट सैनिटेशन के पे ध्यान ना होना, ऑल ऑफ विच इम्पैक्ट चाइल्ड डेथ रेट्स. तो कुछ बच्चे तो ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनाइजेशन की नासमझी होने की वजह से मर जाते हैं. बाकी 2.5 करोड़ जो प्रेगनेंसी में जो गुजर जाते हैं बच्चे, जो माँ गुजर जाती है, साथ में बच्चे क्रिटिकल होकर गुजर जाते हैं, वो होते हैं. फिर कुछ चाइल्ड मैरिजेस की वजह से अनीमिया, मतलब वीकनेस इन द बॉडी, एंड लैक ऑफ फोकस ऑन अडोलेसेंट सैनिटेशन की वजह से ये सारी चाइल्ड डेथ रेट्स होती हैं. सो व्हाट इज द क्रिटिकल इन्फ्लुएंस दैट कैन बी मेड? नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शंस गाइस. A lot of Indians are illiterate and hence do not recognize the value of basic health practices. क्या ये इन्फ्लुएंस कहा जा रहा है यहाँ पे? पोटेंशियली बात ठीक है, लेकिन बट और भी ऑप्शन देखते हैं पहले. इंडिया हैज अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन एंड द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट मैनेज हेल्थ सर्विसेज. गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट मैनेज, कहीं गवर्नमेंट की बात आई है ऐसी कि गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती है इतना सब, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि ये सब नहीं हो सकता.
ऐसा कुछ नहीं बोला गया पैसेज में, तो वी कैन एलिमिनेट दैट. यूनिवर्सलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ maternal हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज कैन effectively एड्रेस द प्रॉब्लम. कि अगर यूनिवर्सलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मैटरनल हेल्थ, मतलब माँ की और बच्चे की जो हेल्थ सर्विसेज है उनको इंटीग्रेट करके अगर किया जाए, मतलब देखा जाए, तो ये जो हेल्थ सर्विसेज हैं इट कैन इफेक्टिवली एड्रेस द प्रॉब्लम. एंड फोर्थ, न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज डज नॉट अफेक्ट द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट. नहीं, ये तो कॉन्ट्रोडिक्टरी है. तो उसने बोला कि नहीं होता, तो उसने बोला है देखो अनीमिया अमंग यंग वुमेन, तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया. तो बी और डी क्लियरली एलिमिनेट हो गए अपने पास. नाउ what are the right choices between A and C. So अब दोबारा एक बार पढ़ते हैं. A lot of Indians are illiterate. कि बहुत सारे इंडियंस इलिटरेट हैं. क्या उसने ऐसा कहीं कहा है पूरे पैसेज में कि अनपढ़ हैं वो? ठीक है. एब्सेंस ऑफ बेसिक प्रोपेगेट हेल्थ प्रैक्टिसेस. ये officials believe that the reason for this is the absence of steps to propagate basic health practices. मतलब जो उनको हेल्थ प्रैक्टिसेस सिखाई जानी चाहिए वो स्टेप्स मौजूद नहीं है. मतलब वो नॉलेज या वो इसको हम बोलते हैं ना कि अवेयरनेस नहीं है. सो इसका मतलब ये तो नहीं है वो इलिटरेट है. कि a lot of Indians are illiterate and hence do not recognize the value of basic health practices. No, this is absolutely wrong. So then we are left with our right option. Ke the problem is basically the absence of health services and absence lack of awareness among youth, among child child care, mother care, and even beyond that, right? Even nutrition in the women and lack of focus on adolescent sanitation. These are all the factors. So if they are put together under one, under a same health service, now it can be addressed effectively. So that was the right inference that can be made from the passage. आगे बढ़ते हैं गाइस. नेक्स्ट पैसेज है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट सम अप द पैसेज. सो वी हैव टू फाइंड द समरी ऑफ द पैसेज. सो लेट्स रीड द पैसेज गाइस. By 2050, the Earth's population will likely have swelled from 7 to 9 billion people. कि 2050 तक 7 से हम 9 अरब लोग हो चुके होंगे. To fill all those stomachs while accounting for shifting consumption patterns. कि उन सब पेट को भरने के लिए, जबकि आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हमें क्या ध्यान रखना है कि शिफ्टिंग कंजम्पशन पैटर्न्स, के लोगों के खाने के पैटर्न्स बदलते हैं क्लाइमेट चेंज को ध्यान रखते हुए, एंड अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड, जितनी अमाउंट लिमिटेड अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड, मतलब जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम फसल उगा सकते हैं. एंड पोर्टेबल वाटर, मतलब पीने लायक वाटर या यूजेबल वाटर. सम एक्सपर्ट्स से फूड प्रोडक्शन विल हैव टू डबल. कि अगर हमें 9 अरब, जो कि मतलब 2050 तक हो जाएगी जनसंख्या दुनिया की, अगर हमें उसको खाना देना है, तो हमें ये सब ध्यान रखते हुए, कंजम्पशन पैटर्न, क्लाइमेट चेंज, एरेबल लैंड और पोर्टेबल वाटर को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि हमें खाने की जो प्रोडक्शन है उसको डबल करना पड़ेगा. हाउ कैन वी मेक द नंबर्स एड अप. लेकिन डबल कैसे होगा इतनी जल्दी. एक्सपर्ट्स से हायर यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज एंड मोर एफिशिएंट. एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि हायर यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज एंड मोर एफिशिएंट फार्मिंग मेथड्स विल बी क्रूशियल. कि ये ज़रूरी हो जाएंगे आगे के लिए. सो विल वेस्ट रिडक्शन, और वेस्ट रिडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसमें. एक्सपर्ट्स अर्ज सिटीज टू रिक्लेम न्यूट्रिएंट्स. सो एक्सपर्ट्स जो है वो क्या कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स को रिक्लेम करो, मतलब रिसाइकल करो, एंड वाटर फ्रॉम वेस्ट स्ट्रीम्स एंड प्रिजर्व फार्म लैंड. ठीक है. तो वेस्ट स्ट्रीम से और फार्मलैंड से पानी को बचाओ. पुअर कंट्रीज दे से कैन improve क्रॉप स्टोरेज एंड पैकेजिंग, एंड रिच नेशंस कुड कट बैक ऑन रिसोर्स इंटेंसिव फूड्स लाइक मीट. तो और उसने एक और चीज़ कही है कि भाई जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो अपनी क्रॉप स्टोरेज और पैकेजिंग को इम्प्रूव करें, और रिच नेशंस जो हैं वो अपने कंजम्पशन पैटर्न या रिसोर्स इंटेंसिव जो फूड्स हैं उनको बदलें. तो उसने सभी दुनिया भर के लिए मैं अपने अपने बताएं कि आप क्या क्या कर सकते हो. तो काफ़ी अच्छा पैसा था, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे. तो अब देखते हैं गाइस. द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. इज दिस द समरी ऑफ द पैसेज? आई डोंट थिंक सो. यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है. थिंक फूड सिक्योरिटी इज ए पेरिनियल प्रॉब्लम ओनली इन डेवलपिंग कंट्रीज. ये देखो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम नहीं, तो पूरी दुनिया में होगी. अगर होगी तो नहीं. सो विट कैन से, और ये एक्सट्रीम ऑप्शन है, ओनली आ रहा है, तो वी कैन एलिमिनेट इट. द वर्ल्ड डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू मीट द इम्पेंडिंग फूड स्कैरसिटी, और फूड सिक्योरिटी इज इंक्रीजिंगली अ कलेक्टिव चैलेंज. यस, इट्स अ कलेक्टिव चैलेंज. ये थी सही बात कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी कुछ करना पड़ेगा, डेवलप्ड कंट्रीज को भी करना पड़ेगा, और हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सही हायर यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज और एफिशिएंट फार्मिंग मेथड्स लाने होंगे. तो इट इज़ अ कलेक्टिव चैलेंज. सो दैट इज द राइट समरी ऑफ द पैसेज. ठीक है. All right, very well done, guys. If you are finding the passages easy, so I think you'll be able to do well in your exam as well. So just keep on practicing.
keep on, just be steady with your practice. That is the whole, requirement. So next passage, guys, passage number 3. When Jim came home without his bicycle, his parents, okay, Jim returned the watch. I think this is a short story. So let's read the story first then. 7 year old, 7 साल का बच्चा है, 7 year old Jim came home from the park without his new bicycle. वो पार्क से वापस आया अपनी नई बाइसिकल के बिना. An old man and a little boy borrowed it, he explained. और उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी कि एक बूढ़े आदमी और एक बच्चे ने वो मांग ली मुझसे. दे आर गोइंग टू ब्रिंग इट बैक एट 4 o'clock, और वो 4 बजे उसको वापस लेके आने वाले हैं साइकिल को. हिज पेरेंट्स वर अपसेट, कि उसके पेरेंट्स बड़े अपसेट हुए दैट ही हैड गिवन हिज एक्सपेंसिव न्यू बाइसिकल. ठीक है, उसके पेरेंट्स गुस्सा थे कि यार उन्होंने अपनी नई साइकिल दे दी किसी को ऐसी. ठीक है, बट वर सीक्रेटली प्राउड ऑफ हिज काइंडनेस एंड फेथ. लेकिन गर्व भी कर रहे थे कि भाई वो बड़ा दयालु है और उसको विश्वास है. केम 4 o'clock, नो बाइसिकल. 4 बजे और कोई साइकिल नहीं आई. द पेरेंट्स वर एंक्शियस, पेरेंट्स घबराने लगे. बट 4:30 द डोर बेल रैंग एंड देयर स्टूड अ हैप्पी मैन एंड अ बॉय विद द बाइसिकल एंड अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स. तो और 4:30 बज गए, तब घंटी बजी और वहां पे सामने दरवाजा खोला तो एक खुश आदमी और एक लड़का खड़ा था साइकिल के साथ और साथ में चॉकलेट लिए. जिम सडनली डिसअपियर्ड इनटू हिज बेडरूम. जिम सडनली अपने बेडरूम में भागा एंड देन केम रनिंग आउट, और फिर वापस आया. ऑल राइट, ही सेड, उसने बोला ठीक है. आफ्टर एग्जामिनिंग द बाइसिकल यू कैन हैव योर रिस्ट वॉच, यू कैन हैव योर वॉच बैक. और उसने क्या कहा, ये लो अपनी घड़ी आप वापस ले सकते हैं. मतलब उसने सिक्योरिटी ली थी, कैसे नहीं दिए थे फ्री में. मतलब स्मार्ट बंदा था, फेथ है, ठीक है, काइंडनेस है, लेकिन स्मार्टनेस भी है कि भाई घड़ी दे दो मुझे ताकि जब आप वापस दे दो अपनी घड़ी ले जाओ. राइट, चलो, तो अच्छा पैसेज था. तो क्वेश्चन करते हैं, when Jim came home without his bicycle, his parents were angry with him, were worried, did not feel concerned, या were eager to meet the old man and the little boy. नहीं, आई थिंक ये दोनों गलत हैं. आई थिंक जब वो आया they are going to bring it. His parents were upset that he had given his new bicycle, but secretly proud. So they were upset, they were worried, or they were angry with him. So वो मतलब गुस्सा हो गए थे, या they were worried, they were upset, कि मतलब वो परेशान थे. सो आई थिंक द राइट आंसर इज दे वर वरिड, कि वो साइकिल अब पता नहीं किसको दी है, इसने आएगी या नहीं आएगी. सो दे वर वरिड अबाउट इट, नॉट एंग्री, दे वर प्राउड. उसने आगे लिखा है, but secretly proud of his kindness. Next, Jim returned the watch to the old man and the little boy because they gave him chocolates. His father was proud of him. He was satisfied with the condition of his bicycle, or they were late only by 30 minutes. I think he returned the watch when he was satisfied with the condition of the bicycle. Otherwise, he would have told them to get it fixed. So I think that is the right answer. उसने घड़ी वापस क्यों दी? क्योंकि उन्होंने चॉकलेट दी उसको? नहीं. क्योंकि उसके पिताजी उस पर गर्व करते थे? नहीं. क्योंकि वो 30 मिनट लेट थे? नहीं. आई थिंक जो उनकी डील की थी उसने 7 साल के बच्चे ने, विच वॉज अ वेरी स्मार्ट मूव, कि आप सही सलामत साइकिल वापस लेके आओ और अपनी घड़ी ले जाओ. सो दैट वाज द राइट आंसर. सो गाइस, दिस इज हाउ you eliminate your options, and this is how you solve your passages in the exam. Right, so we'll keep on practicing like that. More such sessions will be there every week, and there will be one tomorrow as well. So guys, if you like our explanations, if you like the way we are helping you, you can join us in our comprehensive course for CSAT. Now we are offering this course to to make you ready within 100 hours. Right, we promise to prepare you for CSAT, all the subjects, quants, reasoning, English, right, within 100 hours. So in this course we are providing you all the concept classes along with the downloadable PDFs. Then there will be test series where you have sectional test and full length test. There will be weekly live doubt sessions conducted by us to help you out with your queries, and then before the exam we will be conducting live revision classes as well. So I think all the previous year questions are there, right? All the material is there that you need. All the practice questions are there. So I don't think there is anything more that you need for your CSAT preparation. So this is a one-stop solution for all your CSAT subjects, all your CSAT exam. So come join us. The link for this course has been given in the description of the video. So I would request you to go check it out, and if you feel like joining us in this journey, you'll be more than happy. We'll be more than happy to help you out here. So thank you so much once again, guys. And if you want the PDFs of these session, the link has been given in the description of the video. You can find these PDFs on our Telegram channel. You can join our Telegram channel and you can get the PDFs. And guys, if you like these sessions, please don't forget to like the session. Don't forget to subscribe if you're new here. That is the least you can do. And guys, if you have any doubts, if you have any queries, you can call us on this number, that is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. So I'll see you again tomorrow with more such sessions. Thank you so much once again. Keep on working hard, keep on giving your best, and happy learning to all of you.